the subject mercantile law, and we have started with Indian Contract Act 1872, and we are dealing with special contracts. Today we are going to start with a new chapter, bailment and pledge. Let's have its first question. Define bailment and explain its essentials. Let's have first its introduction, that what exactly information available with bailment and pledge with us. Let us try to avail that information. Bailment and pledge are a special class of contracts. Like indemnity and guarantee contract, bailment and pledge contracts are also considered as special contracts as per Indian Contract Act. They are dealt with separately in section 148 to 181 of the Indian Contract Act. So from section 148 to 181, we are provisions of bailment and pledge as per Indian Contract. Well, friends, Indian Contract Act 1872 is not a comprehensive act dealing with all types of specific contracts, but there are other contracts also that you are supposed to take into consideration. There are various other contracts also, various other acts also which deals with specific contracts, like the Railway Act 1890, Career Act 1865, etc. The Contract Act deals with the general principles underlying contract of bailment. So, special acts are also different types, or we can say with different acts they are dealing with, like Railway Act 1890, Career Act 1865 also. So all the general principles of uh, Indian Contract Act, which are valid, which are followed for a valid contract, that all are followed in bailment contract too. That as per section 10, we have learned various essentials for a valid contract. All that points, all that essentials are also implemented to bailment contract. Now let's have the definition of bailment. As per section 148 of Indian Contract Act, it defines bailment as the delivery of goods by one person, the delivery of goods by one person to another for some purpose, upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. Now there are two parties in case of bailment contract. First is bailer and another is bailee. Now who is bailer? So the person delivering the goods is called the bailer. The person delivering the goods is called the bailer, and the person to whom they are delivered is called bailer. Now in daily life we are doing bailment contract, but we are not aware about bailment contract. That the contract which we are dealing with, it's a bailment contract, we are not aware about it. तो पता ही नहीं होता है बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर ले, लेकिन हमने बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया, बट वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. खास ध्यान रखना, पार्टीज का नाम जो लिखा गया है वही लिखना है, आपने चेंज नहीं करना है. प्रोमिसर प्रोमिस ही, ऑफर और ऑफर ही, प्रपोजर प्रपोज ही, वो इस पर्टिकुलर एक्ट में अवॉइड करना है आपने. हाँ, सिर्फ एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ प्रोमिसर प्रोमिस ही शब्द का उपयोग किया गया है, वहाँ आपने इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड ही लिखना चाहिए नॉर्मली. गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में सर श्योरिटी, डेटर और क्रेडिटर ये नाम लिखने चाहिए आप. बेलमेंट में बेल और बेली, प्लेज में पाउनर पाउनी आता है, तो जो नाम है अंदर वही लिखने हैं आप, चेंज नहीं करने. वहाँ आप सिंपल लैंग्वेज में ऑफर और ऑफर ही ये सब शब्द यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमने वो गड़बड़ नहीं करनी है. तो बी केयरफुल. सर बेलर कौन है? सर द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स, मीन्स द ओनर ऑफ द गुड्स, जिसकी ओनरशिप होगी गुड्स से जुड़ी हुई, वो बेलर है. बेली कौन है? सर जिसको गुड्स दिए जा रहे हैं, द पर्सन डिलीवर्ड, द गुड्स आर डिलीवर्ड. यहाँ सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स की बात होगी.
द सब्जेक्ट मैटर्स आर मूवेबल गुड्स इन केस ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इमूवेबल गुड्स की इसके अंदर कोई जगह नहीं है। खास ध्यान रखना, जब एग्जाम्पल लिखो तो आपने हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया, लैंड लिख दिया सब्जेक्ट मैटर में तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने मूवेबल गुड्स ही लिखने हैं सर सब्जेक्ट मैटर के अंदर। खास ध्यान रखना जब आप एग्जाम्पल आप लिखो अंदर। तो जिसको ये चीज दी जा रही है, गुड्स डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी की जा रही है, द पर्सन टू whom they are delivered, the goods are delivered, that is called bill। Bailment as the delivery of goods by one person to another for some purpose। यानी एक बंदा अपनी चीज दूसरे को दे रहा है, गुड्स एक बंदा दूसरे बंदे को दे रहा है फॉर सम पर्पस, कुछ हेतु है उसका, और इस हेतु के आधार पे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, जो आपका हेतु है जब वो सिद्ध हो जाए, द पर्पस इज अकम्प्लिश, आपने जिस हेतु के लिए वो चीज दी है, अपनी चीज किसी और को दी है, वो हेतु जब सिद्ध हो जाए तो बंदे ने रख नहीं लेना है, सामने वाले बंदे ने वो रिटर्न कर देना है। बेलर जब अपनी चीज बेली को दे रहा है, पर्पस कुछ पर्पस होगा इसलिए दे रहा है, पर्पस जैसे ही फुलफिल हो जाए सामने वाले ने वो चीज रिटर्न कर देनी, बेली ने वो चीज बेलर को वापस दे देनी, या बेलर की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से डिस्पोज ऑफ करने को अगर बेलर ने सूचना दी हो, डायरेक्शन दिया हो, इंस्ट्रक्शन दिया हो, तो उसके हिसाब से डिस्पोज कर देना है, मीन्स सेल ऑफ कर देना है, बेच देना है। ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती है, डायरेक्शन भी हो सकता है, अगर इस डायरेक्शन के हिसाब से काम करने को बोला गया तो कर दे। यानी बेलर ने बोला हो कि ये मेरा मोबाइल है बिगड़ गया, आप इसको रिपेयर कर दीजिए, बेच दीजिए, तो रिपेयर करने के बाद बेचने का इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन तो बेच देना। मोबाइल रिपेयरिंग का जो मैंने ट्रांजेक्शन आपके सामने रखा सर, वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट सर, इट्स अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, बेस्ट एग्जाम्पल। सो इन लीगल टर्म्स अगर मैं बात करूं बेलमेंट क्या है, तो बेलमेंट क्या है सर, बेलमेंट चेंज ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी आपकी चीज आप किसी और को दे रहे हैं सर, कब्जा दे रहे हैं, उसका पोजेशन दे रहे हैं। आपका मोबाइल बिगड़ गया तो आप मोबाइल रिपेयरिंग के लिए एक शॉप ओनर को देंगे कि भाई मेरा मोबाइल रिपेयर करके दे दीजिए, तो आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। आपकी चीज थी वो आपने किसी और को दे दी है, लेकिन रिपेयरिंग पर्पस के लिए दी है, आपके उसके पीछे कुछ पर्पस होगा इसलिए आपने दी, बिगड़ गया रिपेयर करना। तो यू आर चेंजिंग, देयर इज अ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज बेलमेंट। एकदम लीगल टर्म्स की बात करें, सिंपल टर्म्स में मैंने अभी जो आपसे बात की हुई, when one person hands over some goods to another for a special purpose। आप अपनी चीज किसी और को दे रहे हैं और उसके पीछे आपका कुछ मकसद है, पर्पस है, स्पेशल पर्पस हो सकता है। जैसे वो पर्पस फुलफिल हो जाता है, एकम्प्लिश हो जाता है, आप क्या करेंगे सर, वो सामने वाले बंदे ने यानी कि बेली ने आपको वो चीज रिटर्न कर देनी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेली। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल्स आर योर लाइफ लाइन, so have examples in your answers too, and learn more and more examples if possible। X delivers some gold to Piku jewelers to make necklace for his wife। X delivers some gold to Piku jewelers to make necklace for his wife। In this case, X is biller and Piku jewelers is bail, and by delivering gold to jeweler, a relationship of bailment is created between X and the jeweler। एक्स नाम का बंदा जो है सर, वो क्या करता है, गोल्ड दे रहा है एक ज्वेलर्स के ओनर को, पीकू ज्वेलर्स करके उसको गोल्ड दे रहा है। उस गोल्ड में से वो क्या चाहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग गोल्ड, सर ही वांट्स टू फ्रेम अ नेकलेस फॉर हिज वाइफ, मे बी एन एनिवर्सरी गिफ्ट। तो नेकलेस बनाने की बात कर रहा है, पीकू ज्वेलर्स को अपना सोने सोने का बिस्कुट दे के आ गया, गोल्ड दे के आ गया, उसमें से वो नेकलेस बनाने की बात कर रहा है अपनी वाइफ के लिए। तो यहाँ एक्स कौन है सर, बेलर। The person who is having the ownership of the goods is called baler। जिसका माल है वो माल का मालिक, जिसे हम बेलर कहते हैं। और जो सेवा दे रहा है गुड्स के ऊपर, जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, वो कौन है सर, बेली, पीकू ज्वेलर्स, यहाँ पे बेली, ठीक है। और बाय डिलीवरिंग गोल्ड टू ज्वेलर, आप जैसे ही अपनी चीज का कब्जा किसी और को दे रहे हैं, यू आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम योर्स टू अनदर। यानी आप किसी और को वो चीज दे रहे हो ना, तो जैसे आप वो चीज दे रहे हो, पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हो उसका, तो सर क्या हो जाएगा, देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ बेलमेंट क्रिएटेड बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट इज एक्स एंड ज्वेलर। बेलर और बेली के बीच में ये ट्रांजेक्शन हुआ, बेलमेंट का ट्रांजेक्शन।
अब चलते हैं एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट की बात करते हैं। हमने डेफिनेशन समझ ली, सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग समझ लिया। अब एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट, लेट्स हैव द फर्स्ट एसेंशियल, कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर। सबसे पहली चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? There is a contract for creating a bailment. First essential requirement for creating a bailment contract, the first essential requirement is the existing. There must be an existing agreement between bailor and bailey. Contract करने के लिए पहला स्टेप क्या है सर? एग्रीमेंट होना चाहिए दो पक्षकारों के बीच में, bailor and bailey. There must be an intention to create a legal relationship. जिम्मेदारी वाली बातें होनी चाहिए दोनों पक्षकारों के बीच में। अगर वो जिम्मेदारी वाली बातें आ जाती हैं तो वहाँ पे वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का स्वरूप ले लेगा। So for creating a bailment, the first essential requirement is the existence of an agreement between the bailor and the bailee. Next point पे चलते हैं। Voluntary transfer of goods. This is one of the important point. Base of the bailment contract, voluntary transfer of goods. For bailment, it is necessary that the goods should be delivered to the bailee. Goods should be delivered to the bailee. Change of possession of goods by delivery by one person to another must be for a temporary period. If it is further necessary that the possession of the goods should be voluntarily transferred and is in accordance with the contract. So सबसे important चीज ये है कि जो बेलमेंट किया जा रहा है सर, वहाँ पे चेंज ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स होना चाहिए। एक बंदे की जो चीज है जब तक वो सामने वाले को नहीं देगा उस पर काम नहीं होगा, पर्पस फुलफिल नहीं होगा। यू हैव टू ट्रांसफर the possession of the goods. Change of possession of goods must be done from one person to another. It may be for temporary period. थोड़े समय के लिए हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा की बात नहीं होगा। हमेशा की बात होगी ना तो परचेज एंड सेल एग्रीमेंट हो जाएगा, सेल ऑफ गुड्स एग्रीमेंट हो जाएगा। और आपने कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए आप अपनी चीज किसी और को दे रहे हैं और उसमें से वो चीज जो आपने दी है शायद हो सकता है उसमें से आपको कोई वो सर्विस देने वाला है। जैसे अभी अपने एग्जांपल देखा ज्वेलर्स वाला, आप गोल्ड दे रहे हैं उसमें से वो आपको नेकलेस बना के दे रहा है, ऑर्नामेंट्स बना के दे रहा है। वहाँ पे आपको फैसिलिटी दे रहा है, सर्विस दे रहा है एक तरीके से। लेकिन आपने जो चीज दी है ना टेम्पररी पीरियड के लिए दे रहे हैं आप, हमेशा के लिए नहीं दे रहे। टेम्पररी पीरियड के लिए आपने पोजीशन को चेंज करना ही पड़ेगा। आप अपनी चीज जब तक बेली को नहीं देंगे, एज अ बेलर आप बेली को वो चीज नहीं देंगे, पोजीशन नहीं देंगे तो काम कैसे होगा? तो पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए। और जो पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए। उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, पोर्शन का उपयोग नहीं होना चाहिए, फोर्स का उपयोग नहीं होना चाहिए। वॉलंटरी ट्रांसफर होना चाहिए, चोरी भी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स अ थीफ एंटर्स अ हाउस and by showing the revolver orders the owner of the house to surrender all the ornaments in the house to him. The owner of the house surrenders the ornament. In this case, although the possession of the goods has been transferred, but it does not create bailment because the delivery of goods is not voluntarily transferred. तो यहाँ एक चीज का आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स के घर में चोर घुस आता हो और वो चोर रिवॉल्वर दिखा के तो मिस्टर एक्स से कहता है कि भाई आपने अपने घर के जितनी भी ज्वेलरी वगैरह है, ऑर्नामेंट्स है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपने सब सरेंडर कर देनी, मुझे दे दी। द ओनर ऑफ द हाउस सरेंडर्स द ऑर्नामेंट्स। बेचारे के पास कोई ऑप्शन होगा नहीं, जाने तो जाने, हाँ भाई ले लो, सोना चांदी जो भी है सब ले लो, पैसे भी ले लो। यहाँ सिर्फ ऑर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं हम, ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। दिस केस although the possession of the goods has been transferred, but it does not create bailment because the delivery of the goods voluntary। आपने सामने वाले को मजबूर किया है, फोर्स किया है कि वो अपनी चीजें आपको दे दे। उसने अपनी स्वेच्छा से नहीं दिया, वॉलंटरीली ट्रांसफर ऑफ गुड्स नहीं किया, बल्कि आपने उसके ऊपर फोर्स किया है। यहाँ कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपनी चीज सामने वाले को स्वेच्छा से देनी, वॉलंटरी ट्रांसफर। जैसे भी हमने एग्जाम्पल देखा, आप गोल्ड अपनी इच्छा से दे के आ रहे हैं, उसमें से आपने नेकलेस बनवाना है, कोई चोरी करके आपके घर से नहीं लेके जाना है पीकू ज्वेलर्स। आप अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरीली आप वो चीज उसको दे रहे हैं सामने।
तो ऐसी होनी चाहिए, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ गुड्स होना चाहिए फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब आपका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस होना जरूरी है। आप अपनी चीज किसी और को क्यों देंगे? आप अपना माल किसी और को क्यों देंगे सर? आप उसके पीछे कुछ आपका मकसद होगा, कुछ उद्देश्य होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, पर्पस होगा। स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए आपको करना क्या है। ठीक है, अगर आप किसी टेलर को कपड़ा दे रहे हैं, तो कपड़ा क्यों दे रहे हैं, पीस ऑफ क्लोथ क्यों दे रहे हैं, तो उसके पीछे आपका स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए कि सर इसमें से आपने मुझे शर्ट बना के देनी है। तो पर्पस फिक्स होना चाहिए, आपको क्या बनाना है उसका, शर्ट बनाना है, पैंट बनाना है, या आप सफारी शूट बनाना चाह रहे हैं, या कोट बनाना चाह रहे हैं, क्या कोटी बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, वो आपका फिक्स होना चाहिए पर्पस। ठीक है, वैसे ही अगर आप किसी फर्नीचर का लकड़ा लेके आ जाते हैं, लकड़े का ऑर्डर दे देते हैं, वुड लेके आ जाते हैं, तो उस वुड में से फर्नीचर बनाना ये फिक्स है, लेकिन फर्नीचर किस स्वरूप का बनाना है, क्या बनाना, क्या सोफा बनाना है, या किचन सेक्शन में कुछ काम करना है, या कबोर्ड बनाना है, क्या बनाना है, वो स्पेसिफिक पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिक पर्पस क्लियर होगा तो बेली आगे काम करना है, करना क्या है। स्पेसिफिक पर्पस जैसे ही सॉर्ट आउट होगा, तो सर वहाँ पे वो चीज़ हमारी फुलफिल होगी, हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे फुलफिल होगा। स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम वो चीज़, वी आर ट्रांसफरिंग द गुड्स वॉलंटरीली टू अनदर पर्सन, वाई, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, कुछ उद्देश्य होगा हमारा उसके लिए, और वो उद्देश्य सिद्ध करना है। वी आर सपोज टू फुलफिल दैट ऑब्जेक्टिव, दैट पर्पस, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। इसके अंदर सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि किस चीज़ की ट्रांसफर ऑफ गुड्स होगी सर, मूवेबल गुड्स ट्रांसफर किए जाए, मूवेबल गुड्स होना जरूरी, इमूवेबल गुड्स की कोई जगह नहीं। सो द बेलमेंट कैन बी ओनली फॉर मूवेबल गुड्स, मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन मूवेबल गुड्स, मनी को दूर रखा गया। जो करेंसी हम उपयोग कर रहे हैं सर, उन सबको यहाँ पे इस इन मूवेबल गुड्स में समावेश नहीं, मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन मूवेबल। एज वेयर मनी इज डिपॉजिटेड, एग्जाम्पल दिया है, एज वेयर मनी इज डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर with a bank in a current saving or fixed deposit account, and therefore there is no obligation to return the same money but an equivalent of it, it is not bailment contract। आप मान लीजिए बैंक अकाउंट में जाके सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिक्स डिपॉजिट ओपन कर रहे हैं, कोई अकाउंट ओपन कर रहे हैं शॉर्ट में, तो आप उस अकाउंट के अंदर मनी डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको वही मनी थोड़ी भी वापस मिलने वाला है सर, वही नेम जो उसके नंबर होते हैं, वही नंबर वाला, सीरियल नंबर वाला मनी थोड़ी आपको रिटर्न नोट्स आपको रिटर्न किए जाएंगे सर, वो तो रोटेट होते रहेंगे, उसके हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो आप जैसे ही कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो वही चीज़ आपको रिटर्न मिलने वाली नहीं है। बेलमेंट में क्या होता है, जो आप जो चीज़ दे रहे हैं वही चीज़ आपको वापस मिलनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा सा उसका स्वरूप चेंज हो, लेकिन गोल्ड दिया है तो गोल्ड की चीज़ रिटर्न आनी चाहिए। मनी दिया है, मनी मिलेगा, लेकिन वही मनी नहीं मिलेगा। इसलिए मनी को यहाँ एक्सेप्शन में रखा गया है, मनी को यहाँ पे मूवेबल गुड्स में एलिजिबल नहीं किया गया, एग्जम्पशन दिया गया, मनी को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि वही मनी रिटर्न नहीं होने वाला है, वही स्वरूप में नहीं होगा, वही डिनोमिनेशन में नहीं होगा। आप दो दो हजार की 10 नोट डाल के आए हैं, और कितना डिपॉजिट हो गया सर, 2000 की 10 नोट डाली यानी 20,000 हो गए। आप मान लीजिए एक महीने बाद जब वो विड्रॉ करने जा रहे हैं, तो क्या आपको दो दो हजार की नोट देगा वापिस, वही नोट देगा सर? ये फिक्स नहीं। हो सकता है आपको 100 की नोट्स मिले, डिनोमिनेशन चेंज हो जाएंगे, 50 रुपीज वाली नोट्स मिल जाए, 500 वाली मिल जाए, तो ये सब फिक्स नहीं है, 200 वाली मिल जाए। इसीलिए इसको बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसको ये सब्जेक्ट मैटर नहीं माना गया है। ऑल मूवेबल गुड्स आर इंक्लूडेड एक्सेप्ट वन, आपको याद रखना, मनी इज नॉट इंक्लूडेड। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, आखिरी पॉइंट है इसका, रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। जो चीज बेलमेंट में दी गई है वही चीज रिटर्न करनी, और कोई रिटर्न नहीं करना। आपने गोल्ड दिया है तो गोल्ड, उसी गोल्ड में से आपने सामने वाले ने उस पर काम करके आपको देना है। कोई भी ऑर्नामेंट, जैसा ऑर्नामेंट्स की डिमांड की गई हो सकता है बैंगल्स बनाने को बोला हो, गोल्ड के बैंगल्स बना के दीजिए, नेकलेस बोला हो, ब्रेसलेट बोला हो, जो भी गोल्ड की चीज बोली, गोल्ड रिंग बोला हो,
ठीक है, तो वो जो भी आपसे डिमांड किया गया, सोने की चेन, गोल्ड की चेन बोली हो तो गोल्ड चेन हो सकता है, वो रिटर्न करना है, लेकिन वही गोल्ड में से वो चीज़ बनाई हुई होनी चाहिए। आपने मान लीजिए कोई वॉच रिपेयरिंग में दी है, तो वही वॉच को रिपेयर करके रिटर्न करनी, कोई और वॉच रिटर्न नहीं करनी, आप लोगे ही नहीं, ये मेरी वॉच है ही नहीं, मैंने ये दी ही नहीं। आपका मोबाइल बिगड़ गया है, तो आपने जो मोबाइल दिया था रिपेयरिंग के लिए, तो वही रिपेयर करके, उसी में रिपेयरिंग व काम करके, सेवा देके, सर्विस देके, बिलमेंट के अंदर आपको वही चीज़ रिटर्न करनी चाहिए। रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स होना चाहिए। आपका एमआई का कोई मोबाइल है, तो एमआई का मोबाइल आपने दिया है, तो एमआई का ही मोबाइल आपको रिटर्न करना पड़ेगा सामने वाले को। कोई और मोबाइल रिटर्न करेगा, कोई और कंपनी का, कि भाई आपका एमआई का तो गुम हो गया, सैमसंग का ले लीजिए। नहीं सर, मेरा वो मोबाइल था ही नहीं। मैं तो एमआई का देके गया था, आपने एमआई का ही रिटर्न करना है। दूसरा मैं एक्सेप्ट करूँगा ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं। आपने कुछ गड़बड़ कर दी हिसाब-किताब में। आपने मुझे वही मोबाइल रिटर्न करना चाहिए। स्पेसिफिक गुड्स जो चीज़ आपको दी है, आपने दी है सामने वाले को, वही चीज़ पे काम करके उसने आपको रिटर्न करना है। वो फ्री में रिटर्न नहीं करेगा, आपने भी रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा। रिपेयरिंग चार्ज जो है वो आपको पे करना पड़ेगा सर।